Hello students, we are going to continue the chapter capacitor. In the last video, we discussed about capacitance of a single conductor, spherical conductor and parallel plate capacitor with and without dielectric. Now we are going through the more topics of this chapter, capacitor and capacitance. First of all, we are going to discuss energy stored in a capacitor. We have to find the energy stored in a capacitor. For this, we consider a capacitor. We have taken a capacitor of capacitance C, and initially we just suppose the plates of capacitor are uncharged. Initially no charge is there and we have to charge the capacitor. In this process, we just suppose that we have to transfer positive charge from plate 2 to plate 1. We will step by step shift the charge, positive charge, from first plate to the second plate. And in this process, when we transfer the charge, work has to be done. Students, you all know that in all the expressions for energy, we need to calculate the work done. The work that is done is stored in the form of energy. So here we will calculate the work done in shifting the charge, in shifting the positive charge from the second plate to the first plate. Whenever I shift a positive charge to the first plate, it leaves behind a negative charge. Whenever we shift a positive charge to first plate, it leaves behind a negative charge. So we know that potential of the positive charge is positive and potential of negative charge is negative. But so the first plate which is having the positive charge is at higher potential. The negative plate which is having negative charge is at lower potential. It means when we have to shift the charge from second to first plate, work has to be done. So we say that work has to be done because potential of first plate is greater than potential of plate second. So step by step we shift the charge. We have to finally reach the stage when the first plate get the charge positive Q and second will automatically acquire the charge negative Q. For calculating the work done, we consider an intermediate stage. हमने एक बीच की स्टेज सेलेक्ट कर ली क्योंकि जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है पोटेंशियल चेंज होएगा तो वैल्यूज फिक्स नहीं है, तो हम एक इंटरमीडिएट स्टेज जो है वो यहाँ पे कंसिडर करते हैं, इंटरमीडिएट स्टेज, सो दैट चार्ज ऑन द प्लेट्स इज प्लस क्यू माइनस क्यू. मीन्स अभी इंटरमीडिएट स्टेज है, अभी इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है, इस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया और हम लोग स्मॉल चार्ज डी क्यू शिफ्ट करने के लिए स्मॉल वर्क डन निकाल सकते हैं और टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. तो जब हमारे पास वैल्यूज वेरिएबल होती हैं तो व्हाट वी डू, हम किसी भी स्मॉल इंटरवल पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और टोटल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसको इंटीग्रेट करते हैं. तो व्हाट वी हैव डन हियर, वी जस्ट सपोज हमने फाइनली इतना चार्ज इसको देना है प्लस क्यू, इस पे ऑटोमेटिकली माइनस क्यू आ जाएगा, लेकिन हमने इंटरमीडिएट कोई स्टेज ले ली कि इसको हम इतना प्लस क्यू स्मॉल क्यू चार्ज दे चुके हैं और माइनस क्यू इस पे ऑटोमेटिकली आ गया. तो स्मॉल डी क्यू शिफ्ट करने के लिए जो वर्क डन है वो हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे और टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे. तो जस्ट सी स्मॉल वर्क डन इन मूविंग चार्ज डी क्यू फ्रॉम प्लेट 2 to 1 else. अब हम लोग पोटेंशियल यहाँ पे वर्क डन के लिए एक्सप्रेशन क्या यूज करते हैं, लास्ट चैप्टर में भी हमने सभी केसेस में वर्क डन के लिए एक्सप्रेशन यूज किया था, पोटेंशियल इनटू चार्ज. वर्क डन ये हमारे पास एक्सप्रेशन वर्क पोटेंशियल की डेफिनेशन से आया है. पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क को हम लिख लेते हैं पोटेंशियल इनटू चार्ज. तो स्मॉल वर्क डन किसके इक्वल आ गया, पोटेंशियल इनटू चार्ज के. अब कैपेसिटर के लिए वी हैव इक्वेशन Q इज इक्वल टू सी वी. कैपेसिटेंस तो C फिक्स रहेगी, हमने Q चार्ज अभी तक दिया है, हमने यहाँ पे क्या सपोज किया है कि Q चार्ज हमने प्रोवाइड किया, तो Q चार्ज लिया, तो इससे हम पोटेंशियल की वैल्यू को क्या पुट कर सकते हैं, Q बाय C, स्मॉल Q बाय C. ये वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे. स्मॉल वर्क डन हमारे पास आ गया Q अपॉन C D Q. This is total work, this is small work done. To find the total work done, we will integrate it. Now just see total work done
in moving charge, इनिशियली कितना चार्ज था, वी जस्ट सपोज कि अनचार्ज्ड है 0, फाइनली हमें कितना चार्ज लेके आना है, कैपिटल Q। तो इस चार्ज को 0 से Q तक मूव करवाने में टोटल वर्क डन जो है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, इंटेग्रेशन, इंटेग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब यहाँ पे डी क्यू के विद रिस्पेक्ट टू इंटेग्रेशन है तो लिमिट्स चार्ज की आएंगी। इनिशियल चार्ज कितना है 0, फाइनल चार्ज हमें कितना लेके आना है, कैपिटल Q। और जब हम इसको इंटेग्रेट करेंगे वर्क डन, ये टोटल वर्क डन आएगा। C कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर की फिक्स होती है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। कैपेसिटी जैसे बकेट की कैपेसिटी वाटर को स्टोर करने की फिक्स है, वो इस पे डिपेंड नहीं करती कि हमें कितना पानी स्टोर करना है। उसी तरीके से कैपेसिटर की कैपेसिटी फिक्स है, वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगी कि हमें कितना चार्ज स्टोर करना है। कैपेसिटी कैपेसिटेंस फिक्स्ड वैल्यू है, हमने उसको इंटेग्रेशन से बाहर लिखा। वी आर लेफ्ट विद Q dQ। नाउ Q की हम इंटेग्रेशन करेंगे, Q की इंटेग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, सिंपल इंटेग्रेशन है Q²/2। लिमिट्स आ गई। नाउ वी विल पुट द लिमिट्स हम कैसे पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट इज Q itself and lower limit is 0. तो what we get the expression as Q²/2C। तो ये हमारे पास एनर्जी का, अब ये जो वर्क डन है वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होएगा। तो एनर्जी का हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया हाफ Q², यहाँ पे जैसी कैपिटल Q विल बी हियर, कैपिटल Q हमने लेना है। तो जब लिमिट पुट करेंगे कैपिटल Q², जो सिंबल डिफर होएगा बच्चे, Q²/2C, ये हमारे पास आ गया Q²/2C। ये हमारे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब इस एक्सप्रेशन को हम दो और वेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने कैपेसिटर के लिए इक्वेशन पढ़ी Q = CV। अगर मैं यहाँ पे Q की वैल्यू पुट कर दूं CV, तो मेरे पास Q की जगह मैंने CV पुट कर दिया। When we open the bracket, it is C²V²। एक C डिनोमिनेटर में है, कैंसिल हो गया, हमारे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पे हाफ CV²। ये एक दूसरा वे है जिसमें हम एनर्जी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। वन मोर वे इज हियर, हमने सेम एक्सप्रेशन लिया जो हमने डिराइव किया था, Q²/1/2 Q²/C। अगर हम यहाँ पे C की वैल्यू को पुट कर दें इस एक्सप्रेशन से, अगर हम लोग C को पुट कर दें Q/V, अब हमने Q की वैल्यू पुट की थी, अब C की वैल्यू Q/V, एक Q कैंसिल हो जाएगा, V ऊपर शिफ्ट हो गया, हाफ QV। So this is another expression for energy. तो energy can be expressed in three ways: Q²/2C, half CV², half QV, डिपेंडिंग अपॉन द न्यूमेरिकल कि क्या वैल्यूज गिवन है, कौन सा फॉर्मूला रिक्वायर्ड है, वो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो इन तीनों तरीके से जो एनर्जी है उसको एक्सप्रेस किया जाता है। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब इसी टॉपिक के अंदर हम लोग इसी के साथ कॉन्टिन्यूटी में एक चीज और डिस्कस करते हैं जिसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब हुआ, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी क्या होएगा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम जो स्पेस है कैपेसिटर के अंदर, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होएगी, दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। अब इसी एक्सप्रेशन को हमने आगे कॉन्टिन्यूटी में लेके जाके इसको हमने एनर्जी डेंसिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। अब देखो हम लोगों ने एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या फाइंड आउट किया, इट इज Q²/2C। हमने इसको मॉडिफाई करना है और हमें यहाँ से एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एक तो C की वैल्यू पुट करेंगे पैरेलल प्लेट के लिए। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ε0 A/d। दूसरा
हमारे पास पैरेलल प्लेट के लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कैपेसिटर की प्लेट्स के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सिग्मा को मैंने पुट कर दिया चार्ज अपॉन एरिया, एप्सिलॉन नॉट एज सच लिख लिया। इस एक्सप्रेशन से हम लोग चार्ज को पुट करेंगे एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास ए एप्सिलॉन नॉट ई। अब हम लोग ये फर्स्ट हमारी जो इक्वेशन है इसमें ये C की वैल्यू पुट करेंगे और ये Q की वैल्यू यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो एनर्जी Q की वैल्यू पुट की मैंने, Q का स्क्वायर है तो सारी टर्म्स का मैंने स्क्वायर लिख लिया, A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2 C की जगह पुट किया एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक एप्सिलॉन नॉट वाली टर्म हमारी कैंसिल होगी, एक एरिया वाली टर्म भी कैंसिल होगी। मेरे पास बची यहाँ पे टर्म हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी, जो डिवाइड बाय डिवाइड में है वो ऊपर शिफ्ट हो गया। अब आप लोग देखो ये एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया ऑफ द प्लेट होता है, ए प्लेट्स का एरिया, डी डिस्टेंस है, तो एरिया इंटू हाइट लाइक दैट इज वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम। तो अगर हम लोग एनर्जी को इस टर्म से डिवाइड कर दें, मीन्स हमने किससे डिवाइड कर दिया इसको, वॉल्यूम से, और इसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी। हमने एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, ये हमारा वॉल्यूम है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सो दिस इज अवर एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी। हम लोगों ने इस टॉपिक में एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कितनी होती है, और एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट किया। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. In the next topic, we will discuss about redistribution of charges. Redistribution of charges. Redistribution of charges, जब आपस में charges एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे मूव करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन उनकी होएगी। यहाँ पे हम लोग दो कंडक्टर्स कंसिडर करते हैं। दो कंडक्टर्स मीन्स दो कैपेसिटर्स हमने ले लिए। सिंगल स्फेरिकल कैपेसिटर, एक सिंगल कंडक्टर को भी कैपेसिटर बोलते हैं। तो हमने ये दो कंडक्टर्स या कह लो कि दो कैपेसिटर्स ले लिए। एक की कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे की कैपेसिटेंस C2 है। सपोज एक पे चार्ज Q1 है, दूसरे पे चार्ज Q2 है। फर्स्ट का पोटेंशियल V1 है, सेकंड का पोटेंशियल V2 है। इनको हम लोगों ने इंसुलेटिंग स्टैंड पे प्लेस किया। इंसुलेटिंग स्टैंड पे क्यों प्लेस करेंगे, ताकि जो चार्ज है वो ग्राउंड में लीक ना होए, बिकॉज अर्थ इज ऑल्सो अ कंडक्टर। तो व्हाट वी हैव कंसिडर्ड हियर, वी हैव कंसिडर्ड टू कैपेसिटर्स। दो कैपेसिटर्स हमने लिए हैं। एक की कैपेसिटेंस हमने सपोज की कि C1 है, दूसरे की कैपेसिटेंस हमने सपोज की C2 है। फर्स्ट पे चार्ज Q1 है, सेकंड पे ये चार्ज Q2 है। अलग अलग चार्जेस हैं और हेंस अलग अलग उनके पोटेंशियल्स हैं। पहले पे पोटेंशियल V1 है हमारा और दूसरे पे जो पोटेंशियल है वो V2 है। ये चीज हमने सपोज की। अब हमारे पास अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो Q1 चार्ज किसके इक्वल होएगा, C1 V1, क्योंकि हमने ये कैपेसिटर के लिए इक्वेशन पढ़ी थी Q इक्वल टू CV। तो Q1 चार्ज किसके इक्वल होएगा, C1 V1 के। सिमिलरली Q2 चार्ज किसके इक्वल होएगा, C2 V2 के इक्वल होएगा। अब नाउ लेट अस सपोज हमने जो दोनों कंडक्टर्स हैं इनको एक कंडक्टर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। आपस में हमने इनको कंडक्टर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, चार्ज विल फ्लो। व्हाट विल हैपन, जब हमने इसको कंडक्टर से इसको कनेक्ट कर दिया कंडक्टर से, देन व्हाट विल हैपन, चार्ज विल फ्लो। किधर से किधर फ्लो करेगा, फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, हाई टू लो पोटेंशियल। कब तक फ्लो करेगा, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए।
till potential of two conductors become the same. जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होएगा, जो चार्ज है वो हाई टू लो पोटेंशियल फ्लो करेगा. इट मीन्स जब हमने इनको कनेक्ट कर दिया तो दोनों का पोटेंशियल क्या बन जाएगा, सेम. दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल बनेगा हमारे पास सेम. उसको हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल. दोनों का एक पोटेंशियल बन गया, सेम वैल्यू बन गई, उसको वी से दैट इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल. अब पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल आप देखो यहाँ से चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस. यहाँ पे दो इकट्ठे कैपेसिटर्स की बात की है, उन्होंने आपस में चार्जेस शेयर कर लिए. तो कॉमन पोटेंशियल किसके इक्वल होएगा? टोटल चार्ज. टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अपॉन टोटल कैपेसिटेंस. हम दोनों की कंबाइंड बात कर रहे हैं, कॉमन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस. अब नाउ वी नो दैट कि टोटल चार्ज कितना था, एक के पास Q1 दूसरे के पास Q2, तो टोटल कितना बन गया Q1 प्लस Q2, और दोनों की टोटल कैपेसिटेंस कितनी बन गई C1 प्लस C2. ये दोनों की टोटल कैपेसिटेंस है. अगर हम इन इक्वेशन से Q1 Q2 की वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास ये Q1 की वैल्यू पुट की हमने C1 V1, Q2 की वैल्यू पुट की हमने C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2. ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास कॉमन पोटेंशियल का. सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल, जिसको हमने टोटल चार्ज, कितना चार्ज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अपॉन टोटल कैपेसिटेंस से जो एक्सप्रेशन है वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया. नाउ लेट, अब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि जो फाइनल चार्जेस हैं दोनों कैपेसिटर के वो सेम नहीं रहेंगे. अब हमने सपोज किया अभी Q1 डैश और Q2 डैश फाइनल चार्जेस हैं, फाइनल चार्जेस ऑन कंडक्टर्स आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, ऑन कंडक्टर्स आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन. चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए तो अमाउंट ऑफ चार्ज जो है दैट विल चेंज एंड द फाइनल चार्ज विल बी डिफरेंट. नाउ Q1 डैश हमारे पास देखो किसके इक्वल होएगा, CV. CV क्यों, यहाँ पे C1V क्यों लिया हमने, क्योंकि कैपेसिटेंस पहले C1 थी, तो बाद में भी कैपेसिटेंस हमने पहले भी पढ़ा है, कैपेसिटेंस चेंज नहीं होएगी, वो फिक्स है. C1 ही हमारी कैपेसिटेंस रही, और हमने ये पढ़ा है कि दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल क्या बन गया, V. तो फाइनल चार्ज Q1 डैश किसके इक्वल आ गया, C1V. C1 कैपेसिटेंस चेंज नहीं होएगी और V जो है वो कॉमन पोटेंशियल है. सिमिलरली Q2 डैश कितना आ जाएगा, नाउ यू कैन राइट द इक्वेशन फॉर दैट. कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी लेंगे, C2, बिकॉज कैपेसिटेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज और दोनों का ही पोटेंशियल सेम है V. तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया फाइनल, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है इसके लिए, चार्ज ऑन द सेकेंड कैपेसिटर Q2 डैश को हमने C2V में एक्सप्रेस कर लिया. अब यहाँ पे एक चीज हम और डिस्कस करेंगे. whenever the charges will be redistributed, charge will move from one point to another, and during their movement some energy will dissipated as heat. That means whenever the sharing of charges is there, the final energy will always be less than the initial energy, and we have to show this, and we have to also find the expression for loss of energy, ki after the redistribution how the energy will lost. We know the energy will loss in the form of heat, but we have to show this ki energy will decrease after sharing of charges, and also we have to find the expression for the loss of energy here. So firstly we will write expression for initial energy. इनिशियल एनर्जी का हमने एक्सप्रेशन लिखा हाफ C1V1 स्क्वायर. ये पहले कैपेसिटर की एनर्जी आ गई क्योंकि पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है. ये सेकंड की एनर्जी आ गई हाफ C2V2 स्क्वायर. शेयरिंग के पहले दोनों का
जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट है। फर्स्ट का V1 है, सेकंड का V2 है, तो उससे हमने जो इनिशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो राइट डाउन किया। सिमिलरली फाइनल एनर्जी क्या होगी, हाफ C1। अब पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल फाइनली कितना हो गया V, और दूसरे कैपेसिटर का भी पोटेंशियल फाइनली क्या हो गया V, बिकॉज शेयरिंग के बाद दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम हो गया। अब इस एक्सप्रेशन में से हम लोग V स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, और ये जो हमने ऊपर एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है V का, इसकी जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे V में पुट कर देंगे। नाउ आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ओवर हियर। इसका स्क्वायर है तो मैं सीधा स्क्वायरिंग कर रही हूँ, C1 V2 C2 V2 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर। एक टर्म न्यूमरेटर में है C1 प्लस C2, डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, तो एक पावर कैंसिल होगी, तो फाइनल एनर्जी हमारे पास आ गई हाफ C1 V1 C2 V2 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। तो ये हमारे पास फाइनल एनर्जी जो है ये उसका एक्सप्रेशन आ गया। तो अब हम लोगों को फाइंड आउट करनी है लॉस ऑफ एनर्जी, और वी नो इनिशियल एनर्जी फाइनल से ग्रेटर होएगी, हम इसको शो भी करेंगे। अब यहाँ पे हम इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी को सॉल्व करेंगे। इनिशियल एनर्जी की वैल्यू हमने पुट की C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस ये फाइनल एनर्जी आ गई। स्टेप्स को शॉर्ट करने के लिए स्क्वायरिंग में ओपन कर रही हूँ, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ए स्क्वायर A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, 2C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब इन सारी वैल्यूज में से हाफ इज कॉमन, हाफ कॉमन, और हम लोग एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये C1 प्लस C2 इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होएगा और इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होएगा। पहले मैं इसको फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। जब हम फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। यही फर्स्ट टर्म C2 के साथ मल्टीप्लाई होएगी, C1 C2 V1 स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट टर्म सॉल्व हो गई। हमने इस टर्म को डिनोमिनेटर वाली टर्म से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब जब हम सेकेंड टर्म को सॉल्व करेंगे, देखो फिर C2 C1 V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये चार टर्म्स आ गई। दो हमारी न्यूमरेटर में थी, दो डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई करके 4 टर्म्स आ गई। और अब इस सारे के आगे नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स अब ये सारे जो साइंस हैं वो हमारे चेंज हो जाएंगे। ये टर्म बन गई C1 V1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म भी नेगेटिव बन गई C2 V2 स्क्वायर, थर्ड टर्म भी हमारी नेगेटिव बन गई। सारे टर्म्स के साथ नेगेटिव साइन मैंने लगा दिया, और डिनोमिनेटर में सेम टर्म है C1, हाफ सारे के साथ हमारा कॉमन है। So just see, simple mathematics is there, little bit lengthy but it's easy one। तो अब हमारे पास ये नेगेटिव वाली टर्म है C1 V1 स्क्वायर, ये नेगेटिव में पड़ी है, ये पॉजिटिव में पड़ी है, बोथ विल कैंसल आउट। सिमिलरली ये टर्म C2 V2 स्क्वायर नेगेटिव में पड़ी है, ये C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर हमारी पॉजिटिव में पड़ी है, ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। और एक चीज आप देखो भी, यहाँ पे C1 C2 कॉमन है, यहाँ पे C1 C2 कॉमन है, यहाँ पे C1 C2 कॉमन है। फाइन, तो जो टर्म्स तो पॉजिटिव नेगेटिव है कैंसिल कर दी हमने। बाकी की कितनी टर्म्स बची, तीनों टर्म्स में C1 C2 कॉमन है, तो उसको मैं कॉमन ले रही हूँ। पहली टर्म है V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, और तीनों के साथ C1 C2 इज कॉमन, C1 प्लस C2। नाउ ये जो हमारे पास ये सारी टर्म है,
a माइनस बी स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, इट इज फॉर्मिंग v1 माइनस v2 होल स्क्वायर c1 c2 c1 प्लस c2। ये किसकी वैल्यू थी? इनिशियल माइनस फाइनल। नाउ जस्ट सी जो हमारे पास ये वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव आएगी क्योंकि इसका होल स्क्वायर है, कैपेसिटेंस है ही पॉजिटिव। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होएगी, और वी कैन से जो इनिशियल एनर्जी है वो फाइनल एनर्जी से हमारी ग्रेटर होएगी, एंड देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। और ये हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया कि कितनी एनर्जी लूज होएगी जब दो कंडक्टर्स को हमने कनेक्ट किया और जो चार्जेस है वो आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। सो दिस वाज अबाउट द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 2 more टॉपिक्स। 2 छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं हमारे पास। नाउ स्विचिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कनेक्टिंग एक्शन of a hollow conductor। अब इसमें आप देखोगे, अब एक डिफरेंट चीज को स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कंडक्टर कैसे चार्ज को कलेक्ट करेगा। तो जस्ट सी, यहाँ पे हम लोग 2 कंडक्टर्स कंसिडर करेंगे, एक स्मॉल रेडियस का, दूसरा बड़े रेडियस का। 2 स्फीयर्स लिए हैं हमने, एक का रेडियस स्मॉल है उसको हमने स्मॉल आर से डिनोट कर लिया, एक का रेडियस लार्ज है उसको हमने कैपिटल आर से डिनोट कर लिया। छोटे स्फीयर का चार्ज हमने स्मॉल क्यू से ले लिया, बड़े स्फीयर का चार्ज हमने कैपिटल क्यू से ले लिया। सपोज दोनों स्फीयर्स एक कंडक्टर के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर के थ्रू जो दोनों स्फीयर्स हैं वो कनेक्टेड है। अब हम यहाँ पे दोनों स्फीयर्स का जो पोटेंशियल है वो फाइंड आउट करेंगे। हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसको मैंने ले लिया फर्स्ट स्फीयर, इनर वाले को फर्स्ट स्फीयर ले लिया, आउटर वाले को सेकंड स्फीयर ले लिया, और दोनों स्फीयर्स का जो पोटेंशियल है वो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो जस्ट सी किस तरीके से हम लोगों ने पोटेंशियल के जो एक्सप्रेशंस हैं वो राइट डाउन करने हैं। तो जस्ट सी, पोटेंशियल ऑन इनर स्फीयर। V1 से इसको मैंने डिनोट किया। अब यहाँ पे ये पॉइंट्स पे आप जरा फोकस करो। इनर स्फीयर पे पोटेंशियल निकालना है तो जस्ट सरफेस पे हमने पॉइंट कंसिडर किया। तो जो ये वाला चार्ज Q है, स्मॉल q, आउटसाइड पॉइंट के लिए कैसे बिहेव करेगा? इफ इट इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, और अगर चार्ज सेंटर पे पड़ा है तो वी कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल। क्या एक्सप्रेशन आएगा? पॉइंट चार्ज वाला एक्सप्रेशन, 1/4πε0 Q। क्योंकि ये चार्ज सेंटर पे सपोज कर रहा है, सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है? R है। स्मॉल r से हमने इसको ये डिस्टेंस यहाँ पे हमने लिख दिया। अब जो चार्ज आउटर स्फीयर पे है उसकी वजह से भी अंदर पोटेंशियल होएगा। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जितना पोटेंशियल सरफेस पे है, इनसाइड हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है? सेम। और इस चार्ज की वजह से हमारे पास पोटेंशियल क्या बन जाएगा? अगर ये चार्ज सेंटर पे होएगा, जब हम आउटसाइड पॉइंट के लिए वैल्यू निकालेंगे तो डिस्टेंस सेंटर से क्या आएगा? कैपिटल आर। और जितना पोटेंशियल सरफेस पे है उतना ही अंदर हर पॉइंट पे है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया Q, कैपिटल Q बाय कैपिटल R। तो ये हम लोगों ने पोटेंशियल ऑन इनर स्फीयर फाइंड आउट किया है।
ये छोटे चार्ज की वजह से पोटेंशियल, ये कैपिटल क्यू की वजह से पोटेंशियल। इसी तरीके से हम लोग आउटर स्फीयर पे जो पोटेंशियल है वो फाइंड आउट करेंगे। पोटेंशियल ऑन आउटर स्फीयर। Just see, when we talk about the outer sphere, अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे तो जो ये वाला क्यू चार्ज है कैपिटल क्यू, उसके लिए भी ये आउटसाइड पॉइंट है, और जो स्मॉल क्यू है उसके लिए भी आउटसाइड पॉइंट है। दोनों चार्जेस के लिए अब जो ये पॉइंट है V2 जहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है वो आउटर पॉइंट है। इसका मतलब दोनों चार्जेस कैसे बिहेव करेंगे, एज इफ दे आर प्रेजेंट एट द सेंटर। और अगर दोनों चार्जेस सेंटर पे पड़े हैं तो स्मॉल चार्ज भी अब कहाँ पे पड़ा है, सेंटर पे। सेंटर से इस पॉइंट का, सेकंड पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। और फर्स्ट चार्ज के लिए भी, कैपिटल क्यू के लिए भी सेंटर से डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। द एक्सप्रेशन में हमने क्या चेंजेस हमारी आई हैं। अब आप देखो जो सेकंड टर्म है वो दोनों में सेम है, सिर्फ डिफरेंस किसका है, ये स्मॉल आर और कैपिटल आर का। क्लियरली कैपिटल आर स्मॉल आर से ग्रेटर है वैल्यू, डिस्टेंस इज ग्रेटर। दैट मीन्स जो V2 है वो V1 से क्या होएगा, लेस। V2 की वैल्यू V1 से क्या होएगी, लेस होएगी। इसका मतलब जो इनर स्फीयर है, V1 किसका पोटेंशियल है, इनर स्फीयर का, वो ऑलवेज क्या है, ग्रेटर। जो इनर स्फीयर है, पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर is always greater than potential of outer sphere. Irrespective, कैपिटल क्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यू की वैल्यू कुछ भी है, क्यू की वैल्यू कुछ भी है, ऑलवेज ही इनर स्फीयर का पोटेंशियल क्या होएगा, ज्यादा। और जैसे ही इनर स्फीयर को कोई चार्ज मिलेगा, क्योंकि पोटेंशियल हाई है और चार्ज हमेशा किधर फ्लो करता है, हाई टू लो, ये चार्ज किसको दे देगा, आउटर स्फीयर को प्रोवाइड कर देगा। तो सारा चार्ज कहाँ पे कलेक्ट होएगा, इट इज ऑन द आउटर कंडक्टर, इट इज ऑन द आउटर कंडक्टर। तो वी कैन से जो भी चार्ज इनर स्फीयर को शिफ्ट होएगा देंगे वो आउटर स्फीयर पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन होल चार्ज ऑफ कंडक्टर be transferred to another insulating conductor, insulated conductor। तो चार्ज कैसे ट्रांसफर हो सकता है सारा का सारा, अगर हम एक कंडक्टर को दूसरे के इनसाइड रख दें तो जो इनसाइड वाला कंडक्टर है उसका पोटेंशियल हमेशा क्या होएगा, हाई। तो जो भी चार्ज इसको मिलेगा वो सारा चार्ज किधर ट्रांसफर हो जाएगा, आउटर वन को। तो जो सारा चार्ज है कंडक्टर का वो आउटर पे शिफ्ट हो जाएगा। अदरवाइज चार्ज क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, हाफ हाफ हो गया। लेकिन यहाँ पे हाफ हाफ नहीं होएगा, जो भी चार्ज इनर स्फीयर को हम देंगे, जो भी चार्ज इसको होएगा वो ऑटोमेटिकली आउटर पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इनर स्फीयर का पोटेंशियल जो ऑलवेज क्या है, वो हाई है। ठीक, तो दैट इज द, इट इज जस्ट, सॉरी वन मिस्टेक इज देयर, इट इज कलेक्टिंग एक्शन, नॉट द कनेक्टिंग, इट इज कलेक्टिंग, चार्ज को कलेक्ट करना। It is collecting action of hollow conductor. Now, one more topic is there, which is called corona discharge. Corona discharge. ये जो दोनों टॉपिक्स हैं जो हमने अभी पढ़ा,
कि कलेक्टिंग एक्शन और कोरोना डिस्चार्ज ये वेन डे ग्राफ जनरेटर के प्रिंसिपल हैं, लेकिन जो वेन डे ग्राफ जनरेटर है वो 2 years बैक CBSE सिलेबस में से हमारे कट हो गया है, लेकिन दीज टॉपिक्स आर स्टिल इन आवर सिलेबस। तो कोरोना डिस्चार्ज को अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कोरोना डिस्चार्ज में इफ वी हैव पॉइंटेड कंडक्टर है जिसके पॉइंटेड एंड्स हैं, पॉइंटेड शेप है कहीं पे। अब इस कंडक्टर को कुछ चार्ज गिवन प्रोवाइड किया हमने। वी नो दैट चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज चार्ज अपॉन एरिया। अब जो पॉइंटेड एंड्स हैं, पॉइंटेड एंड्स एट पॉइंटेड एंड्स, एरिया क्या होएगा? वेरी स्मॉल। सरफेस चार्ज डेंसिटी inversely proportional to area, surface charge density will be very large. And electric field at the surface of conductor हमने पढ़ा था, electric field at the surface of conductor sigma by epsilon naught. If sigma is very large, it means electric field is also very large. Pointed ends पे electric field की जो strength है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। और वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ यू रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू द वैल्यू ऑल्सो 10⁻³ into 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर पे व्हाट हैपन्स? द एयर गेट्स आयोनाइज्ड। जो सराउंडिंग एयर है वो आयोनाइज हो जाती है। तो यहाँ पे एयर आयोनाइज होगी, उसके पॉजिटिव आयन्स बन गए, इलेक्ट्रॉन बन गए, पॉजिटिव आयन बन गए, इलेक्ट्रॉन बन गए। नाउ ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स आके इनको न्यूट्रलाइज करेंगे और पॉजिटिव जो है वो रिपेल होंगे। ये पॉजिटिव इन पॉजिटिव आयन्स को रिपेल करेगा, एक इलेक्ट्रिक विंड सेटअप हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक विंड इज सेटअप। विंड इज सेटअप इन एयर। एयर में इलेक्ट्रिक विंड सेटअप हो जाएगी जिसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। तो दिस इज कोरोना डिस्चार्ज कि दैट व्हेन एवर पॉइंटेड कंडक्टर इज देयर, तो जो पॉइंटेड एंड्स पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट विल बी वेरी हाई बिकॉज एरिया इज वेरी वेरी स्मॉल, एंड सिंस surface charge density is very high, electric field also be very high, it will ionize the air. This high field will ionize the air. The negative electrons will move toward the positive and the positive ions will get repelled and will come in air, and hence an electric wind is set up in the air, and this phenomenon is called corona discharge. So this is about the corona discharge. Thank you.